In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. I'm Namira Khan, student of Media Studies Department, Comsat University, Lahore. And on the behalf of my teammates and department, I welcome you all to today's webinar. Before proceeding with the session, I would request my fellow colleague, Musayyib Hamza Khan, to please recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Jazakallah. Today, we have among us Honorable Mr. Dilawar Chaudhary, who is the Chief News Editor of Nawaya Waqt, writer, journalist, and senior analyst. Thank you so much, sir, for taking out your precious time from your busy schedule and honoring us by your presence here. Mr. Dilawar started his career as a columnist and political analyst in Roznama-e-Jang back in 1990, when he was only 21 years of age. In 1992, he joined Nawaya Waqt as a sub-editor, and from that day till now, he has traveled through all the journeys of success, from being sub-news editor to news editor, and now the chief news editor working for this prestigious institution. The most important acknowledgement of Mr. Dilawar is his library, which is the fruit of his dedication, skills, and hard work, on which he has been awarded many shields and medals by various institutions as a sign of appreciation and acknowledgement of his services for the print media of Pakistan. With that said, I would now welcome our respectable guests and faculty members. Assistant Professor Dr. Sumaira Batul from Mass Communication Department, Lahore College Women University. Assistant Professor Dr. Saeed Nadeen Jafar. Dr. Muhammad Tariq, Head of Library, Comsat University, Lahore. Assistant Professor Ms. Aisha Mirza. Ms. Iram Nawaz, Lecturer Media Studies, Comsat University, Islamabad, and Sir Talha Aslam. And lastly, I would like to introduce the man who has not only been the founder of this department, but our mentor, our torchbearer, and the beacon of light for us and our department for a successful and enlightened future. Yes, I'm talking about our very dear and respectable Sir Suhail Riaz Raja. We are truly pleasured by your all presence here. Now, I would request Sir Suhail to please welcome the guest speaker formally. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much, Namira, and I congratulate you all for putting up such a wonderful session. And I'm really grateful to the guests who have come over to encourage the students. Sir Dilawar Chaudhary Saab is an inspiration. आपको इन हस्तियों से मिलाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चले आज अगर अल्लाह ने दिलावर चौधरी साहब को इतनी इज्जत दी है, इतना मर्तबा मुकाम दिया है और हम सब उनकी इज्जत करते हैं, उनके प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन की वजह से, जो उन्होंने अपनी नॉलेज की बेस पे, एनालिटिकल एबिलिटीज की बेस पे और रिजॉल्व की बेस पे, कमिटमेंट टू द ट्रुथ की बेस पे हासिल किया है। मुझे तकरीबन रोज़ ही एक बुक का तारुफ दिलावर साहब भेजते हैं और वो यूनिक किताब होती है इनकी लाइब्रेरी में से। तो बेटा, मीडिया की दुनिया में कोई लोग कामयाब होते हैं जिनके पास नॉलेज है, जिनका नॉलेज बैंक बड़ा है, जिनके पास कहने को कुछ है, जिनके पास इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमारे जिस तरह न्यूज़पेपर के पेजेस हैं इतने 10-12, वो सारे एरियाज में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कॉमर्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। सो ये वो डाइवर्स कैनवस है जिसके बारे में डाइवर्स इंफॉर्मेशन आपको लेनी होती है।
तो दिलावर चौधरी साहब जो हैं आज आपके साथ शेयर करेंगे बुक की अहमियत एक मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट के लिए, और किस तरह बुक आपको गाइड करेगी और किस तरह ये आपका साथी भी होगी कामयाबी के सफर पे। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दिलावर साहब, वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमें अपने मसरूफ वक्त में से एक प्रेशियस आवर दिया, और मैं चाहता हूं कि आप इन बच्चों को अपनी स्ट्रगल भी बताएं। आप बताएं कि किस तरह किस सफ़र से आप गुजर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और इनको ज़्यादा क्या चाहिए जो ये लेना शुरू करें, ताकि ये भी मीडिया के बड़े नाम बने। आने वाले वक्त में तो बड़ा रूम है चीज़ों के लिए। इनके पास तो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया है जहाँ पे ये अपनी मीडिया आउटलेट्स बना सकते हैं। So with this, I would request Dilawar Saab, over to you, sir. Assalamu alaikum. First of all, I am grateful to Sir Suhail, Nimra and other fellows कि मैं आपसे मुखातिब हूँ. It's a great pleasure and great honor for me. सबसे पहले तो मैं आपको एक बुक, एक नॉवल के बारे में बात करूँगा. वो उसका नाम है मिडनाइट लाइब्रेरी. एक मैट हेग ने एक नॉवल लिखा है कोई 1 साल पहले या कुछ 1 साल से कम अर्सा पहले, जिसका नाम उन्होंने रखा मिडनाइट लाइब्रेरी. वो लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो बियॉन्ड द एजेस ऑफ यूनिवर्स है. इस यूनिवर्स की एजेस से भी कहीं परे, एक तखय्युलाती कह लें या मतलब, लेकिन उनके लिए वो तखय्युलाती नहीं है. तो उन्होंने उसमें लिखा है कि उसमें हर एक की लाइफ के ऊपर एक बुक है, और मेरी लाइफ के ऊपर भी है, आप में से हर एक की लाइफ पे भी है, और प्रपोजल्स हैं बुक्स की शक्ल में कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज करके, अगर आप कोई और तरह का लाइफ पैटर्न अडॉप्ट करें तो आप पहले से बेहतर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं. तो अगर मैं उस लाइब्रेरी में जाऊं तो मैं क्या बनना चाहूंगा. तो मैंने आई वुड लाइक टू चेंज माय लाइफ, और जो इसके जो स्ट्रगल्स हैं या जो भी मैंने अचीव किया है, मैं वैसा ही रहना चाहूंगा. और उसकी वजह जर्नलिज्म से ज्यादा मेरी जो बुक्स के साथ जो मेरी एक एफिलिएशन है, कि मैं चाहूंगा कि मैं इसी तरह बुक्स पढ़ता रहूं और इसी तरह जो है इसी तरह के लाइफ जो है वो गुजारूं, दोबारा भी मुझे मौका मिले, क्योंकि बुक्स आर माय पैशन. और मैं समझता हूं कि हर एक के लिए बुक्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. एक आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट बनाने के लिए, आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए, हर एतबार से जो है वो बुक्स जो है वो उनकी अहमियत है, और वो जो है वो आपको गाइड करती हैं लाइफ में. देखें, अल्लाह ताला ने भी बुक्स को ही जरिया बनाया कि वो इंसान को जो हदायत दी हैं वो सारी बुक्स के जरिए हैं. इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन इंसान को सिविलाइजेशनल इंफॉर्मेशन मिली है, मेसोपोटामियन टैबलेट्स हों या हों व्हाटएवर, वो बुक्स जो हैं मतलब इंडस सिविलाइजेशन की आती है, और हमें और ज्यादा हम अपने आप के साथ जो है अपनी धरती के साथ और इसके हवाले से वेल इक्विप्ड होंगे, इंफॉर्मेटिव होंगे. तो बुक्स की अहमियत इंसान को, आदमी को इंसान बनाने के लिए बहुत बड़ी है, और इसी को एक्नॉलेज किया है अल्लाह ताला ने भी, और इसीलिए भी हम उसकी भी हदायत जो देखते हैं वो भी बुक फॉर्म में है, मैं ये समझता हूँ. तो अब जहां तक बुक स्टडी करने के, एक जर्नलिस्ट के लिए बुक्स स्टडी करना क्यों जरूरी है, लेट्स कम टू द टॉपिक. तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए बुक्स करती क्या है. जब हम स्टडी करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता, अगर हम हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं, कोई साइंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, कि हम कुछ जो ईयर्स हैं उनको याद कर लें कि भाई जंगे आज़ादी कब लड़ी गई, 1857 कोई जवाब दे, कोई जी अपना पाकिस्तान की रेजोल्यूशन कब पास की गई जी 1940 में, कोई ये कह दे.
तो इसी तरह थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, इस तरह की जो साइंस के फार्मूले हैं वो बताने के लिए। बल्कि एक्चुअली बुक्स का मकसद ही होता है कि हम उन्हें पढ़ें और उसके लिए अपने एक जो अपना मेंटल लेवल है उसको एनहेंस करें। हमारी जो ज़हनी जिला के लिए बुक्स बहुत जरूरी है। हम एक खास स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंचे जहां हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरह जज कर सकें, हमारे पास इतना नॉलेज हो और उस नॉलेज की वजह से हम अपनी मेंटल कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो हमने की हो कि हम चीजों को जज कर सकें। तो बुक्स पढ़ने का जो बुनियादी चीज है वो यही है मकसद, कि हम अपनी आप को जो है अपने जो अपना मेंटल लेवल है, अपना जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको मतलब कर सकें। और वो जब हम एक खास स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंचते हैं किताबों के जरिए, किताबों के इल्म के जरिए, हम एक खास अपने इल्म तक के जरिए जो है अपने जहन को लेके जाते हैं, जो जिला देते हैं, फरोग देते हैं, तो उससे चीजों को जज करने में बहुत आसानी होती है कि हम बड़े आराम से बहुत सारी चीजों को जो है वो जज कर सकते हैं, चाहे वो न्यूज हो, हमारे करियर हो, वट एवर इट इज। तो इसके लिए बुक्स बड़ी जरूरी हैं। और अब बात यह है कि सहाफत क्या है। सहाफत सच के अबलाग का एक जरिया, वी आर मीडियम, एक सच और कारीन के दरमियान या सामीन के दरमियान, रीडर्स के दरमियान या अपने व्यूअर्स के दरमियान, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं तो व्यूअर्स के दरमियान, अगर हम जो है वो अखबार में है, न्यूज़पेपर में है, प्रिंट मीडिया में है, तो हम अपने कारीन के दरमियान, रीडर्स के लिए एक मीडियम है, सच के इबलाग का एक जरिया। तो हम अगर हम हमारी जो बुक्स के जरिए हम अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग कर चुके होंगे, अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा सके होंगे कि सच की जांच कर सके, उस ऑथेंटिक क्या है और जो डिसइंफॉर्मेशन क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको बड़ी अच्छी तरह शनाख्त कर सकेंगे अगर हम एक खास स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एक बुक्स की वजह से अपने आप को इनहेंस किया होगा हमने अपने मेंटल लेवल को, तो हम उसके जरिए ज्यादा अच्छी तरीके से सच को जांच सकेंगे। देखे ना, सच को दूसरों तक पहुंचाने से पहले हमें भी तो सच को जांचना जरूरी है। अगर हम वी आर नॉट सम सॉर्ट, मतलब हमको लेटर बॉक्स नहीं है कि जिसमें एक लेटर पड़ा और आगे किसी को मिल गया, एंड वी आर जस्ट मीडियम टू डिलीवर, बट वी आर डूइंग ए सेक्रेड जॉब। एक बड़ी मुकद्दस काम हम कर रहे हैं कि हमने सच को का इबलाग करना है, डिसइंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचानी। जैसे आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया पे अक्सर आप देखते हैं डिसइंफॉर्मेशन, और ऐसी आप मीडिया पे नहीं देखते क्योंकि वहां छान फटक होती है। एक खास लेवल पे जाके चीजों को देखा जाता है, उसको बड़ी अच्छी तरह उनको उनका मुआजना किया जाता है, मुशाहिदा किया जाता है, लेवल पे जाते हैं कि हम इस तरह जो है वो लोगों तक ये पहुंचा सके। तो अगर हम ही गू मगू की कैफियत में होंगे, अगर हम ही सच को नहीं जांच सकेंगे, अगर हम ही उसको वो उस लेवल पे नहीं परख सकेंगे, तो हम उसके इब्लाग का जरिया कैसे बन सकते हैं। इसलिए एक अच्छे जर्नलिस्ट को के लिए तो बुक रीडिंग्स बहुत जरूरी हैं, ताकि वो उसके वो फ्रॉड, मतलब ही मस्ट बी फ्रॉड विद नॉलेज, विद इंफॉर्मेशन। बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं कि हम हर चीज के लिए नेट पे जाएं। नेट आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, आपके जहन को जिला नहीं बख्श सकता, आपको उस लेवल पे नहीं ले जा सकता कि आप चीजों को परखें। और एक चीज और वो ये है कि बुक्स के जरिए अगर आपके पास पहले ही बहुत सारा आपके पास नॉलेज होगा चीजों का, जैसा कि सर सोहेल ने भी कहा कि हमें हर पेजेस का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम एडिटर हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कॉमर्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, शोबिज में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली जो है वो क्या सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल, जैसे आजकल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, इसी तरह नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, रीजनल लेवल पे क्या हो रहा है, सीपैक आगे चल रहा है कि नहीं, चाइना का क्या मूड है, इंडिया क्या देख रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए हम इनको, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो हम उसको उसी वक्त परख सकते हैं। करेंगे अगर हम अपने को इक्विप नहीं करेंगे प्रॉपर नॉलेज के साथ,
प्रॉपर एजुकेशन के साथ बजरिया बुक्स, तो फिर हमें एक गू में रहेंगे। जरूरी नहीं कि हम सच के इब्लाग का जरिया बने, हम डिसइंफॉर्मेशन के इब्लाग का जरिया भी बनेंगे। एंड आफ्टर व्हाट विल बी द रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी लूज करेंगे, आपके इदारे की क्रेडिबिलिटी लॉस होगा, आपका क्रेडिबिलिटी लॉस होगा, तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन सकेंगे। और जब आपके पास तरह तरह के आइडियाज आते हैं और वो आप मुख्तलिफ आइडियाज जो है वो शेयर करते हैं अपने रीडर्स के साथ, तो ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। मसलन मैंने एक बुक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज उसका टाइटल है इनोवेशन, द आर्ट ऑफ इनोवेशन। ये बुक मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला वेदर इट इज समथिंग एल्स, इट्स फील्ड ऑफ आर्ट्स, इट्स अ फील्ड ऑफ एनीथिंग एल्स, वो स्टार्ट ड्रीम से होता है कि इनोवेशन से, ठीक है। इसी तरह आइंस्टाइन ने भी यही बात कही। तो जब तक ये मुझे बुक्स में आइडिया थे कि आपने किसी चीज को अचीव करना है, कोई स्टोरी है, कोई बड़ा आप काम करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जर्नलिज्म में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसको एक अच्छा तरीके से ख्वाब देखें, फिर उस ख्वाब को जो है हकीकत बनाने के लिए लग जाए। साइंटिस्ट जो है वो भी पहले ख्वाब देखते थे, मतलब वो भी उन्होंने भी ड्रीम से शुरू करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम लैंड कर रहे हैं मार्स के ऊपर, वी आर लैंडिंग ऑन मून, और फिर क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है, क्या है, थोड़ा सा फिर वो रियलिटीज को उसके साथ करते चले जाते हैं, और फिर जब इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उनकी चीजें कम्स ट्रू। इसी तरह एक स्टोरी आप समझते हैं कि जी मैं किसी तरह कैसे ये इसको अचीव कर सकता हूँ। आप फर्ज करें एक इन्वेस्टिगेटिव क्लस्टर में है तो आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, पहले ड्रीम इट। और उसके लिए भी आपको बुक्स जो है वो, मतलब जैसे मैंने देखा कि इस तरह की बुक्स हैं जो आपको बड़ा हौसला देती हैं, आपको बताती हैं कि कैसे you will dream and then you will make it comes true। इसी तरह सबसे बड़ी बात यह है कि बुक्स जो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देती हैं। मतलब मैंने एक बुक देखी जो मेरी नजर से गुजरी है, 2 स्टार जर्नल है पाकिस्तानी, इनकी लिखी हुई है कि बुक्स दैट चेंज माय लाइफ। उन्होंने उन बुक्स को बताया कि जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो जर्नलिज्म तो इज अ कंपोनेंट ऑफ लाइफ, इज अ क्रॉस सेक्शन, एक मतलब एक एरिया है। तो आप बुक्स इवन आपकी जो लाइफ है, आपके सोचने का, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे अपने गोल को अचीव करना है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारा बुक्स जो है ये आपकी लाइफ को इवन चेंज जो है एक बड़ी चेंज लेके आती हैं। हो सकता है आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप देखें ना, मैं फिजिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने फिजिक्स भी पढ़ी है ग्रेजुएशन लेवल पे तक। तो अगर उसमें यह है कि अगर आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं तो बड़ी मेहनत आप कर रहे हैं, बड़ा आप जोर लगा रहे हैं जनाब, अपनी तरफ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बट इट इज नॉट कॉल्ड वर्क डन जब तक कि वो दीवार सिरके ना। यानी इफ यू अप्लाई सम फोर्स एंड अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स इफ सम मूवमेंट इज डन, देन इट इज कॉल्ड द वर्क डन। तो इसी तरह आप हो सकता है मेहनत कर रहे हो बहुत ज्यादा आप, लेकिन आपका जो सोच का जरिया है या आपका जो जरिया, जिस जरिए से आप मेहनत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपका जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं है। और उसके लिए बुक्स आपको बड़ी, दूसरों के एक्सपीरियंसेस होते हैं बुक्स में, वो आपको बड़ी अच्छी तरह गाइड कर सकती हैं कि व्हाट इज द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इसकी एक तो ये बात है कि बुक्स की जो अहमियत है वो मतलब इस एतबार से। अब एक जर्नलिस्ट है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर उसके पास वो प्रॉपर जो है वो उसको नहीं कर पा रहा, तो वो बहुत एक बड़ा नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आपको कुछ मिसालें दे देते हैं। जैसे एक दफा एक सब एडिटर मेरे पास पेज लेके आए, बल्कि शिफ्ट इंचार्ज थे, तो जो मतलब वो चेकिंग के लिए जो हमने कॉपी निकाली, प्रेस भेजने से पहले हम चेक करते हैं, वो फाइनल चेकिंग होती है मेरी। तो उसने बताया कि बरसिया हफीज जलंधरी साहब की, मतलब जिन्होंने नेशनल एंथम तख्लीक किया था, हफीज जलंधरी,
तो उसके बरसी की उसने न्यूज लगाई थी फ्रंट पेज पे, और उस पर तस्वीर जगन्नाथ आजाद की लगाई। तो मैंने, जगन्नाथ आजाद भी एक शायर है, उनके बारे में कहा जाता है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बट इट इज नॉर्मली सेड कि कायदे आजम ने उन्हें भी कहा था कि आप लिखें कौमी तराना। तो बहरहाल वो जगन्नाथ आजाद की लगाई हुई मैंने देखा, तो उस पर जगन्नाथ आजाद लिखा। तो मैंने कहा यार, वेट डिड यू गेट दिस पिक? सिंपली सेड सर नेट से लिए। तो मैंने कहा अच्छा, नॉट बिलीविंग, मैंने कहा नेट को वो जब उसने किया ऑपरेट, तो वो लिखा हुआ था हफीज जलंधरी, और उस पर जगन्नाथ आजाद की तस्वीर लगी। सॉरी। तो मैंने उससे सिंपली ये कहा, मैंने कहा कि आप कभी आपने पढ़ा है हफीज जलंधरी को? उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा अगर आपने पढ़ा होता तो शायद आप ये, बल्कि यकीनन आप ये गलती ना करते। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने आगे से कहा, उन्होंने कहा जी मैंने पढ़ा होता है तो फिर भी ये गलती कर सकता है, मैंने देखा तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं, अगर आप पढ़ते तो आप देखते हो कि पोएट्स की बुक्स पे या जो भी ऑथर होते हैं उनकी तस्वीर होती है, ये कुलियात हफीज जलंधरी है। तो मैंने कहा अगर आप कोई बुक उनकी आपकी नजर से गुजरती उनकी, तो उस पर यकीनन तस्वीर भी लगी होती। दूसरा, फिर अगर ना भी लगी होती तो आप किसी ना किसी तरह सर्च करते। पर 99% तो यही होता है कि तस्वीर जो है वो होती है। तो एक ये भी फायदा आपको होता कि आज आप वेल इक्विप्ड होते, आप जगन्नाथ आजाद की, और अगर मुझे भी फर्ज करें जल्दी में होता, या मैंने भी ना पढ़ा होता उनको, या देखा होता, या इंटरेस्ट ना होता, तो शायद मैं भी ये इस तरह ही करता। और इसलिए इसको चेंज करें। उसने कहा बिल्कुल ठीक सर, पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने से जो है वो बड़ा फायदा होता है। इसी तरह मैंने कहा आपने बरसी पे बड़ा अच्छा सा कोई शेर उनका कोट कर सकते थे, लेकिन आपने पढ़े ही नहीं। और अगर आप उनका कोई अच्छा सा कोई शेर कोट कर देते तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है न्यूज, तो वो भी पढ़ने से था। तो नेट पे जिस तरह सर्च करके हो सकता है आप किसी को वो हफीज जलंधरी का वो सुन, मतलब नेट इज जो गूगल सर्च है, दैट इज नॉट ए रिलायबल सोर्स। मुझे खुद इसका जाती एक्सपीरियंस है। तो बुक्स जो है वो ऑथेंटिक होती हैं, उनमें मतलब वो बड़ी रिसर्च होती है, खासतौर पे हमारे जो फॉरेन ऑथर्स हैं, माजरत के साथ, मतलब ये खैर इस पे एक अलग डिबेट है, वो बड़ी रिसर्च के साथ 15-15 साल, 20-20 साल, 30-30 साल की रिसर्च के साथ बुक लिखते हैं, उसमें बड़े ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो मैंने कहा अगर आप नेट पे ले ले, हो सकता है इसी तरह जिस तरह जगन्नाथ आजाद की आपने तस्वीर लगा ली है, उसी तरह आप कोई शेर के फैज अहमद फैज का जो है उठा के हफीज जलंधरी पे लगा होता है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी चीजें सर्कुलेट कर रही होती हैं जो उन मुतल्लिका शायरों की नहीं होती, लेकिन लोग उनको कोट कर रहे होते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे से यहाँ मेरी मुराद क्वालिफाइड लोग जो है वो कोट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये अपना आपको किताबें, जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, ऑथेंटिक सोर्स की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक आप इन चीजों को मतलब वो नहीं कर सकते। इसी तरह एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, एक दिन मैं वो देख रहा था, वो जो मतलब जिसको देख के वो मुहावरा याद आता है ना, तुम जियो हजारों साल, वो तो वहां पे एक न्यूज चल रही थी, एक बहुत ही सिविलाइजेशनल एंड हिस्टोरिकल अहमियत का एक जजीरा है क्रेट, यूनान का, बेसिकली यूनान का है। तो वो इतना उसकी सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिकल अहमियत है कि उसको पढ़े बगैर आप सिविलाइजेशनल स्टडीज को मुकम्मल नहीं कर सकते। तो वो उसके हवाले से चल रही थी, लेकिन वो कोई ये एक बुक है प्री हिस्टोरिक क्रेट। तो लेकिन वो चल रही थी, तो वो थी एक के बाद जलजिला आया। तो वो खबर कुछ इस तरह जो है वो न्यूज एंकर जो है वो दे रहे थे, जाहिर है उनको तो आगे से मिली होगी, प्रोड्यूसर और सब ने एक टीम ने मिलके जो बनाई, तो वो तो पढ़ रहे थे। तो वो कह रहे थे कि क्रेटे, यूनान के जजीरे क्रेटे में जलजिला आ गया। तो मुझे बड़ा मतलब आई फील वेरी एम्बेरस कि यार ये क्रेटे क्या, यूनान का जजीरा तो क्रीट है और उसकी बड़ी अहमियत है। अगर इन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होता हिस्ट्री को या सिविलाइजेशनल स्टडी की होती, तो इन थोड़ा सा भी, अगर एक बुक लेके भी जिसमें कदीम तहजीबों की बातें होती है, अगर वो भी किया होता, तो मेरा ख्याल है कि आज ये क्रेटे ना कह रहे होते, क्रेट कहते। तो बड़े एक जो उस चैनल से रिलेटेड एक बहुत
बड़े मोतबर नाम उनके प्रोग्राम भी आते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो वो उनसे मैंने फौरन फोन पे डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी अब तो खबर निकल गई, आप सही कह रहे हैं, तो आगे इसकी तस्दीक करते हैं। तो देखें, ये एक बैड नेम क्रिएट हुआ, मैं समझता हूँ। जो लोग क्रेट को जानते थे और उसकी एक अहमियत समझते थे कि वो एंशियंट एज के जो सिविलाइजेशंस थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और क्रेट, और इसी तरह हमारी इंडस, उनका क्या राब्ता था, जो ये चीजें पढ़ते हैं। तो अगरचे उनकी तादाद कम होगी, बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो जानते हैं वो एक मतलब वो एक पढ़े लिखा, खास पढ़ा लिखा तबका है, मैं समझता हूँ। तो अगर आप उसके नजदीक आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लॉस होता है, तो एक पढ़े लिखे तबके से आप महरूम हो सकते हैं, या वो आप पे रिलाय नहीं करता या आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। आप जिसने वो खबर बनाई उसके लिए भी, और जिसने चलाई उसके लिए भी, और जिस चैनल पे चली उसके लिए भी। तो ये एक चीज। एक और मिसाल जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि हमारे बहुत एक बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, और तो उन्होंने मेडिसिन को एलेबोरेट कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे कि बेसिकली मेडिसीना है, यानी मेडी और सीना, और सीना से मुराद इब्ने सीना। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद भी उनसे बड़ा मुतासिर हूँ। तो एक्चुअली मेडिसिन वर्ड से इब्ने सीना का तो कोई नाम नहीं, ताल्लुक नहीं है। ये है मेडिसीना, लैटिन वर्ड है, मेडिकस से निकला है कि हीलर, और हीलर से जो मेडिसिन, बेसिकली इट्स अ लैटिन वर्ड रूटेड इन ग्रीक सिविलाइजेशन। तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि इसी तरह शायद किसी नेट के जरिए या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन उनको मिल गई गूगल सर्च से, तो उन्होंने शायद इसको एडअप कर दिया अपने प्रोग्राम। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे तो बहुत सारे लोग, सब लोग ज्यादा, मैं तो एक आम सा आदमी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, तो मैंने उनसे भी बहरहाल कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। फिर बाद में मैं भी जरा बिजी हो गया। तो एक्चुअली ये क्लासिकल सिविलाइजेशन है जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन है, उससे मिलके अगर बनी है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने ये किताब पढ़ी होती लैन फॉक्स की, द इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन, बेसिकली इट्स अ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, तो शायद वो ये गलती ना करते। तो इसलिए बुक्स की जो अहमियत है जर्नलिज्म के लिए, वो इतनी ज्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज एक और इस हवाले से मैं एक और बात भी करूंगा, वो ये है कि जर्नलिज्म इज वॉर अगेंस्ट टाइम। सहाफत जो है वो वॉर अगेंस्ट टाइम है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आपको बहुत तेजी से, क्योंकि कंपेटिटर्स होते हैं, इसी तरह आपको अगर आपने थोड़ा सा डिले किया तो कोई दूसरा इसको चैनल जो है वो न्यूज को पिक कर सकता है पहले, और वो ब्रेकिंग न्यूज लेने का क्रेडिट उसको जा सकता है। तो ये वॉर अगेंस्ट टाइम जो है, तो आपको बहुत ही कम टाइम में जो है वो उसको करना होता है, रिफाइन करना होता है। उसके लिए ये नहीं है कि आपको उसको इन्फॉर्मेशन आई है तो आप नेट पे देखने बैठ जाएं आप, लेकिन देखेंगे तो इट विल टेक टाइम, और फिर भी पता नहीं आपको ऑथेंटिक कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिल सके कि ना मिल सके रिगार्डिंग दैट न्यूज जो कि आप चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए पहले से, और उसके लिए भी बुक्स बहुत जरूरी है। जब आपको पता होगा तो आप उसको अपने एनालिटिकल माइंड में फौरन एक जो है वो आपको उसके साथ वो आप उसको देखेंगे और फौरन एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। अब वॉर अगेंस्ट टाइम, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बताया कि कैसे है, इसी तरह प्रिंट मीडिया का भी एक टाइम है कॉपी जाने का। दूसरों के साथ अगर आप लेट कर देंगे, बाकी न्यूज़पेपर मार्केट में आ जाएंगे, आप रह जाएंगे, आपके जो है वो डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी, लोगों आप कैसे पहुंचा सकेंगे जब आप लेट हैं। तो आपको एक फर्ज करें एक न्यूज 1 बजे आती है, उसमें आपको अगर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप फौरी तौर पे उसको प्रोसेस करके जो है वो 15 मिनट के, यार मुझे पता है इस तरह हुआ था, ये वो फलां, ये ठीक है, ये नई बात है, ये पुरानी चीज नहीं है।
मतलब कहीं ये तो नहीं कि आप पुरानी चीज कोई नया करके आपके सामने आ रही है और आप उसको दे रहे हैं। तो आप अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, तो ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी अगर आप इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ बुक्स होंगे तो आप बड़ी आसानी से उसको अपने ज़हन में प्रोसेस कर लेंगे और जल्दी से उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे दे देंगे। वरना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वॉर अगेंस्ट टाइम वाला मामला तो फिर रह जाएगा। तो इस वजह से भी बुक्स की जो है वो बड़ी अहमियत है कि अगर आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, अपने लेट करेंगे, डिले करेंगे, तो देन वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर अगर जल्दी में, वो कहते हैं ना हेस्ट मेक्स वेस्ट, अगर जल्दी में वॉर अगेंस्ट टाइम का ज़हन में रख के, कंपेटिटर्स को ज़हन में रख के कोई चीज गलत दे देंगे तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो हर एतबार से एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए जो है वो बुक्स जो है वो बहुत जरूरी है। और बुक्स के बगैर, देखिए मैं खुद ये समझता हूँ कि किताबों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी चेंज लाई। हम लोग बाजुकात बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनके पीछे भागते हैं, और जबकि हमें आपको अपने आप को लाइफ जो है वो छोटी है और उसके हिसाब से कंसाइज करना चाहिए, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए, अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारा वो जो है डिस्ट्रप्शन नहीं रखनी चाहिए कि ये भी है, वो भी है, फलां भी है। तो ये सलीका भी आपको बुक्स सिखाती हैं। अब एक नई बुक आई है, रिसेंटली आई है, बहुत बड़े वो नफ्सियात, माहिर नफ्सियात हैं, उनका नाम है डैनियल कहनेमान। तो ये है नॉइज। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन मैं इसलिए साथियों के साथ कर रहा हूँ कि बहुत सारी ह्यूमन जो है वो उनके डिसीजंस जो है वो डैनियल कहते हैं कि वो नॉइज बेस्ड होते हैं, यानी उसमें डिसरप्शन होती है, उसमें कोई पायदारी नहीं होती। जैसे फर्ज करें एक ही बंदा है, बीमार है, फर्ज करें उसको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, तो एक डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको किसी और तरह की मेडिसिन देगा। दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको किसी और तरह की मेडिसिन दे देगा। एक की ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, दूसरे की कम हो सकती है। तो इस नॉइज को भी इसी तरह आप कोई आपके पास एक न्यूज आती है, तो द वे यू डील विद इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम सर सुहेल और माई सेल्फ। आप किसी और तरह उसको डील कर सकते हैं, मैं किसी और तरह डील कर लूंगा, और सर सुहेल हो सकता है सबसे अच्छे तरीके से डील करें। तो डैनियल का जो लुब्बे लुबाब मैंने देखा इस बुक में, वो भी यही है कि आप जितना नॉलेज लेंगे उतना ही आप बेहतर अंदाज में चीजों को डील कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, नॉइज को कम करके जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसको ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मसलन देखे ना, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो आपकी तशखीस किसी और तरह करता है, तो एक जो जरा स्पेशलाइज्ड है, फारसीएस है, उसके आगे भी उसने पढ़ा है, अपने फील्ड में किसी खास पर्टिकुलर फील्ड में चला गया है, वहां उसने जो है वो पढ़ा है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है वो उसकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट होगी। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आप एमबीबीएस के पास चले जाएंगे, इलाज वो भी कर देगा, लेकिन हो सकता है कि वो उस तरह आपको डील, बल्कि हो क्या सकता है, होगा कि वो उस तरह आपको डील ना कर सके जिस तरह के आई स्पेशलिस्ट जो है वो आपको डील करेगा, क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ा है, वो ज्यादा उसने नॉलेज गेन किया है, और उसके रिजल्टेंटली उसके अंदर इस हवाले से नॉइज कम है। यानी अगर साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जो डैनियल ने कहा, तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरह, इसी तरह आप एक, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास बहुत इल्म है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आप किताबों के जरिए आपने लिया है, तो फिर आप इन चीजों को ज्यादा जो न्यूज आपके पास आती है उनसे आप डील कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये कहा जाता है कि बीइंग ए अलोन सुपर पावर, नॉट मतलब ज्यादा उसको अलोन नहीं समझा जाता, इज ओनली वन सुपर पावर आफ्टर कोल्ड वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स को कहा जाता रहा। अब खैर कह रहे हैं कि कंपेटिटर्स आ गए हैं, चैलेंजर्स आ गए हैं, चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें भी हो रही हैं। यानी आओ कहते हैं कि अमेरिका जब ये 9/11 के बाद उसने बहुत सारे मुल्कों में
पाउंडिंग की, कहीं अपनी फिजिकल आर्मी पर्सनल भेजे। तो एक बात पैदा हुई कि अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वो सारे मुल्कों का हमसाया है, वो सबके साथ जहां चाहे पहुंच सकता है। तो इसी तरह एक जर्नलिस्ट, खास तौर पे एक एडिटर जो है, उसको मस्ट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एटलीस्ट, इफ नॉट मास्टर। मतलब उसको बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए। उसने मरीख रिलेटेड न्यूज को भी डील करना है, उसने यूनिवर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, आ रही है नासा से, उसको भी डील करना है, उसने यूनाइटेड नेशंस के इलेक्शंस को भी डील करना है, उसने अपने किसी बैकवर्ड एरिया में होने वाले बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शंस को भी डील करना है, उसने रीजनल भी करना है, इंडिया क्या कर रहा है, चाइना के साथ क्या हो रहा है, ऐसी न्यूज भी उसके पास आनी है, उसे यूरोपियन जो यूनियन है उससे रिलेटेड चीजों को भी डील करना है। तो उसने वो भी एक तरह का जो एक अच्छा जर्नलिस्ट है, जो एक एडिटर है, वो भी हर एक का हमसाया होता है, हर इशू का, हर जगह का, यूनिवर्स का, यूरोप का, अमेरिका का, इंडिया का, चाइना का, रीजन का, कॉन्टिनेंट का। तो अगर वो उसके साथ इक्विप नहीं होगा, उसको बेसिक नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज जो बुक्स के जरिए मिलता है वो नहीं होगा, तो वो उसको कैसे वो न्यूज को डील कर सकेगा? ठीक है ना? तो उसका वो मतलब उसका वो स्पेक्टर, वो मतलब वो उस तरह वो उसको नहीं चीजों को जज कर सकेगा। तो वो एक अच्छा एडिटर, एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं बन सकेगा। तो इसलिए हर एक जो एक जर्नलिस्ट है, खास तौर पे देखें हमारे यहाँ जो है, इसको मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि एक एक डॉक्टर है, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड है, फिर वो एक उसमें आगे स्पेशलाइजेशन कर लेता है, उसमें मतलब वो चला जाता है, बाकी चीजों से उसको छुटकारा मिल जाता है, आर्थोपेडिक है, लंग्स का है, रेस्पिरेटरी है, या जो वटएवर, या और भी जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो हार्ट रिलेट। लेकिन एक जर्नलिस्ट और स्पेशली एडिटर जो है, वो हर जगह, उसको हर जगह, हर एवरी सॉर्ट ऑफ न्यूज, एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, हर जगह से डील करना है, हर बात से डील करना है। तो उसको तो पढ़ते रहना पड़ेगा, उसको हर तरह का, उसको एक लॉयर से भी ज्यादा, जो कि एक क्रिमिनल केसेस का हो गया है या किसी और का, वो उसमें जाएगा। लेकिन एक एडिटर, एक जर्नलिस्ट को हर तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से भी, अपने पार्लियामेंट के हवाले से भी, अपने रीजन के हवाले से भी, सीपेक के हवाले से भी, अपने कॉन्टिनेंटल भी, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वर्ल्ड ओवर भी, और यूनिवर्सल भी, गैलेक्टिक की भी, कि गैलेक्सीज में क्या चल रहा है, सोलर सिस्टम में क्या चल रहा है, सारी न्यूज आपको अपडेट होना चाहिए। और इस तरह फिर आप इसी तरह आप एक बेहतर अंदाज में जो है उसको डील कर सकते हैं। तो अच्छा सर, मतलब जी मैं यहाँ पे आपके साथ एक चीज, आपका जो टॉपिक चल रहा है सर, मैंने जिंदगी में ये देखा है कि मेरा एक दोस्त था, वो शेफ था उस वक्त, मतलब अब मैं 90s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल कुजीन के बारे में कोई ना तो इंस्टीट्यूट था ना कोई और चीज थी। वो बंदा सर किताबें पढ़ पढ़ के, किताबों से रेसिपीज ले ले के, इंडिया की किताबें, मलेशिया की किताबें, मुख्तलिफ कंट्रीज की किताबें ले ले के सर वो इतना बड़ा शेफ बन गया था कि उसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। इसी तरह मैंने एडवर्टाइजिंग में लोग देखे, मैंने मीडिया में देखे। सो अगर आपने, मैं ये समझता हूँ कि कुछ स्पेशल करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है, इंस्पायर करना है, आगे बढ़ना है। जैसे आजकल हमारे पास सोशल मीडिया के बारे में पाकिस्तानियों की लिखी हुई कोई किताब नहीं है मोस्टली जो ऑथेंटिक हो। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं जो अभी सोशल मीडिया को चला रहे हैं, आयशा मेरी बात सुन रही हैं, वो सब किताबें पढ़ के, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, चीजें पढ़ के आगे आए हुए हैं, और हमारे वो हम उनसे इंस्पायर होते हैं। एक चीज, जिस बंदे के पास नॉलेज होती है उसकी इज्जत की जाती है। ये दिलावर साहब भी कहेंगे कि हमारी किसी भी शख्स के बारे में इज्जत का मेयार उसका इल्म होता है। इल्म आपको इज्जत दिलाता है। सबसे पहली चीज ये होती है, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। अब आप ये जितने भी दिलावर साहब के तो सारे दोस्त हैं, अगर आज बड़े बड़े एंकर्स देखे, हामिद मीर, सुहेल वड़ायत से लेके जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों के पास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जो मल्टी डायमेंशनल हैं।
मीडिया में आप बोलेंगे, आपकी बात एक्सप्रेशन की दुनिया ना, जो बोलेगा या जो लिखेगा उसकी बात सुनी और समझी जाएगी। आज आपका ये जो सेशन है इसका मकसद सिर्फ सेंसिटाइज करना है। अगर आप ये समझते हैं ना, ये जो दिलावर साहब के पीछे किताबें पड़ी हुई हैं, ये इनकी आइडेंटिटी है, दिलावर साहब की एक पहचान है किताबों से। मैंने इनको इनका एक और पर्सपेक्टिव है, पिछली दफा मैंने इनका सेशन न्यूज़पेपर्स पे लिया था। आप डाइवर्सिटी देखें कि पिछला सेशन अगर आप हमारे लाहौर कैंपस के पेज पे जाएं, 1.5-2 घंटे का इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशनल सेशन पड़ा हुआ है दिलावर साहब का, वो था न्यूज़पेपर पे। अब इनका एक और डोमेन था, वही बंदा, लेकिन उनकी स्पेशलिटी एक और है किताबों में। मैंने उनको फिर रिपीट किया कि सर अब आप आए, आप इस पे बात करें। तो मैं इनके इल्म की इज्जत करता हूँ। और आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया में या आने वाले दौर में अगर आपने इंस्पायर करना है, नॉलेज हासिल करें। कल आप प्रोड्यूसर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, एडिटर बनेंगे, जिस शोबे में भी जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, पीआर में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, इज्जत आपके इल्म की होगी, नॉलेज बैंक की होगी जो आपके पास है। आपको कितना पता है चीजों के बारे में। सो बेटा, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारे जमाने में ऐसे कोई सेशन नहीं होते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था, और ना इतने जनरस हमारे पास लोग होते थे जो अपनी इतनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालें। सो ये बाय द वे दिलावर साहब मेरे एक रेलेवेंट चीज थी, तो मैंने थोड़ा सा कहा। नहीं, बड़ा बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया सुहेल भाई, और इसीलिए हम आपको उस्ताद कहते हैं। आप बड़े काबिल फख्र उस्ताद हैं। नहीं, इट्स रियलिटी। आई रिस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ योर जो आपका एक प्रोफेशनल एक एटीट्यूड है, और जो आपका मतलब उसमें हम लोग जानते हैं। आपको भी पता है कि हमारे जमाने में भी रब्बी उस्ताद जो होता है, जो सही मायनों में उसकी रिस्पेक्ट होती है। बात बुक्स की चली तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी लाइब्रेरी है। इसमें 12,000 से ज्यादा बुक्स हैं। मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है और पूरी दुनिया से बुक्स आती हैं। डॉक्टर तारिक साहब सर, हमारे डॉक्टर तारिक साहब लाइब्रेरी के हमारे हेड ऑफ लाइब्रेरी और फाउंडर हैं लाहौर के, तो वो भी इस वक्त हमारे साथ है। सर मैं चाहूंगा कि अब बात लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी है, तो आप जरा डॉक्टर साहब आप हैं सर, अब ओवर टू यू एंड दिलावर साहब। मैं सुन रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें खैर ये फिगर तो कोई मायने नहीं रखता। असल एक बुक भी आप अच्छी तरह पढ़ ले, मैं समझता हूँ, तो वो भी बड़ा आपको पे करती है। आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, हामिद मीर, सुहेल बड़ाइच। तो सुहेल बड़ाइच यहाँ आए तो उन्होंने लाइब्रेरी देखी, तो उसने कहा सिंपली, चोई साहब, यू आर द रिचेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर था कि देखे ना, ये मेरा पैशन है बुक्स। ये पूरे दुनिया से मैं बुक्स मंगवाता हूँ। और अभी मैं समझता हूँ मैंने अभी बहुत कुछ मेरे लिए करने को बाकी है अभी। और अभी तो मैं एक आम सा तालिब इल्म हूँ, और अभी मैंने बहुत सारा, हो सकता है मैं अपने मीडिया के नॉर्म से या किसी चीजों से या एग्री ना करता हूँ, लेकिन मीडिया बियॉन्ड पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी मेरे करने के लिए हैं और मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे ये कहा सुहेल बड़ाइच ने कि यू आर द रिचेस्ट मैन, यू आर द रिचेस्ट जर्नलिस्ट, तो वो मेरे लिए, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बुक्स देखते हैं और वो बड़ा मतलब अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो बुक्स की कलेक्शन है या इस बुक से जो मोहब्बत है, ये लगा हुआ है, वो कहते हैं ना कि ये निस्सरी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। वैसे तो बेटी तारुफ करवा रही थी तो उन्होंने कहा कि started writing when he was just 21 years. I'm still 21 years old, I feel. तो मुझे अभी बहुत जो है वो इस पढ़ना है, करना है, और बहुत सारे काम जो मैंने पेंडिंग रखे हुए हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता। कभी मैं सोचता हूँ कि मैं वो करूँ। और मैंने अच्छा, बुक्स के लिए एक हमारे साहब थे, उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने कहा कि आए तो उन्होंने कहा कि आपने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, जो 12,000 किताबें आपने रखी हुई हैं। मैंने कहा अगर मैं कहूंगा यस, कैन यू जज मी, क्योंकि आपका भी पढ़ा होना जरूरी है ये क्वेश्चन करने के लिए। अगर मैं कह दूंगा यस, तो आप कैसे जज करेंगे कि आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम मतलब आपको मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। तो मतलब बात ये है कि मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि बुक्स जो है वो आपको सबसे बड़ी बात, जो आपने बड़ी प्यारी बात की, इज्जत देते हैं, एक अच्छा इंसान बनाती है।
एक राइटियस पर्सन जिसे कहते हैं। तो जब एक आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, फिर आप जो चाहे आगे से बन सकते हैं। मतलब आगे जो सब डिविजन्स हैं कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा जज, एक अच्छा जो वटएवर, एक अच्छा पॉलिटिशियन। तो जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, बुक्स आपको, जैसा वो मैंने 2 स्टार जर्नल जो है उनकी बुक है बुक्स दैट चेंज माय लाइफ, और उन्होंने बताया कि कैसे कौन कौन सी बुक्स हैं जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। वो किसी और तरह सोच रहे थे और जब बुक्स पढ़ी, उनको कंसल्ट किया, तो वो किसी और तरह से, इस तरह मेरे साथ भी हुआ। मैंने जिंदगी में सुहेल भाई कभी नहीं ये चाहा कि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊं, या बुक्स का ये मेरे होने का फायदा ये है कि मैं दुनिया का बेहतरीन एंकर बन जाऊं। नहीं, मुझे अपनी आजादी की भी हिफाजत करनी है। मैं जब लॉरेंस गार्डन के बागे जनाह के ट्रैक पे वॉक कर रहा होता हूँ तो मैं चाहता हूँ मुझे कोई ना पहचाने, मैं बड़े आराम से अपनी वॉक कंप्लीट करूं। और ये नहीं है कि मैं कहीं मतलब बिल्कुल मेरी सोशलाइजिंग मतलब इतना मैं हो जाए कि जहां जाऊं लोग जी वो हामिद मीर जा रहा है, वो दिलावर चौधरी जा रहा है। मैंने कभी किसी ने मुझे ये भी पूछा ना कि आपने बुक से फायदा, आप एंकर क्यों नहीं बन जाते, बोला कि नहीं, मुझे अपना मतलब मुझे याद है गैब्रियल गार्सिया मार्केज, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नॉवेलिस्ट, बहुत ही बड़े मैजिशियन ऑफ द वर्ड्स भी उन्हें कहा गया, और मेरा ख्याल है 56 मोर देन 56 लैंग्वेजेस में उनकी ट्रांसलेशन हुई, जिनमें उनका नोबेल प्राइज विनिंग नॉवेल है 100 Years of Solitude। तो जब वो 100 Years of Solitude 6 महीने लगा के उन्होंने लिखा, बाहर नहीं निकल सके, लिखते रहे। तो इस दौरान में उनकी वाइफ को कोई छोटे बड़े काम करने पड़े, पैसे नहीं थे उनके पास। तो इसके बावजूद जब उन्होंने नॉवल कंप्लीट किया, पब्लिशर को दिखाया, पब्लिशर ने कहा वो वाह, मतलब एक बहुत एक मास्टरपीस है ये, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी फेमस। उन्होंने कहा नहीं, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी के बाद छाया करे। मैंने कहा भाई वेरी सरप्राइजिंग। उन्होंने कहा इसलिए कि अगर आपने अब कर दिया तो मैं बड़ा पॉपुलर हो जाऊंगा, मैं अपनी आजादी खो दूंगा, लोग मुझे जहां देखेंगे घेर लेंगे, कोई ऑटोग्राफ मांगेगा, मैं वॉक करने जाऊंगा, मैं बुक शॉप पे जाऊंगा, मैं कहीं कॉफी पीने जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आजादी खो दूं, इसलिए मैं जो है वो मैं चाहता हूं कि आफ्टर, तो लोग इस तरह भी सोचते हैं। मतलब ये कि आप ये सोचें कि बुक से आपको कोई फायदा उठा ले इस तरह का कि आप इनके ऊपर बड़े, आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप एक अच्छे इंसान, आपने अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, या एक कंफर्टेबल मतलब बाय विद पीस ऑफ माइंड। अगर आपने पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है तो आपको हर वक्त जो है वो मटेरियल एस्पेक्ट से नहीं सोचना पड़ेगा। आपको मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रख के, दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करके सोचना पड़ेगा। तो उससे आप मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर जो है वो अपने आप को अपनी अच्छी लाइफ गुजार सके। देखे ना, जिंदगी में सिर्फ कामयाबी हासिल कर लेना ही काफी नहीं है कि भाई मैं एक पीक पे पहुंच गया हूँ, मैं एक एडिटर बन गया हूँ, बल्कि आपने एक अच्छा दिलावर भी बनना है अपने लिए भी, अपने सेल्फ के लिए भी, कि आप एक अच्छे एडिटर हो सकते हैं, एक अच्छे शोहर हो जाएं, एक अच्छे बाप हो जाएं, एक अच्छे भाई हो जाएं, एक अच्छे बेटे हो जाएं। अच्छे दिलावर ना हो, मतलब अपने सेल्फ के साथ बिहेव ना कर सकें, तो फिर क्या फायदा, जिंदगी तो आपने एक दफा ही मिलनी है। तो इसलिए लाइफ को इस एस्पेक्ट के साथ रिलैक्स, कंटेंटेड, काम, और जो है वो ये सारे चीजें आपको बुक्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं, मैं समझता हूँ। क्या आप मुझे सुन रहे हैं कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ? सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं सर। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एक अच्छा इंसान बनने की जो है वो कोशिश करने, और उसमें भी सबसे बड़ा रोल बुक्स का है। देखिए ना, एक साहब आए, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये पेपर जो अब बुक्स हैं इनका तो अब, मैंने कहा यार बात ये, बुक्स कभी भी पुरानी नहीं होती। जिन मुल्कों में इंटरनेट के यूजर 99% हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज, जापान है, वहां तो मैंने कहा लाखों के हिसाब से बुक्स प्रिंट हो रही हैं, और हर वीक के बाद एक आती है। और हमारे यहाँ जो हम पहले ही कहते हैं जी यहाँ बुक सब लोग इंटरनेट की वजह से, वहां पहले ही 500 से ज्यादा कोई तादाद में नहीं शाया होती, जो हजारों साल पुरानी बुक्स हैं
जैसे मैंने अभी जिक्र किया इंडस सिविलाइजेशन, जो जिस एरिया में हम पाकिस्तान 90% इंडस सिविलाइजेशन इसी एरिया से थी। तो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, शायद क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का एजाज हासिल कर ले अगर उसको हम उसको डिसाइफर कर सके। तो अभी तक तो हम उनकी किताबें नहीं पढ़ सके जो उन्होंने लिखी। अगर पढ़ लेंगे तो पता नहीं वर्ल्ड विल टर्न अपसाइड डाउन सिविलाइजेशनली स्पीकिंग, तो बड़ा कुछ एक इनकलाब आ जाए, पता नहीं क्या आ जाए। तो अभी तक तो हम हजारों साल पुरानी बुक्स अभी पूरी तरह पाइपरस जो है इजिप्शियन वो नहीं देख सके, पूरी तरह हमें टैबलेट्स नहीं मिल सकी मेसोपोटामियम, तो इसी तरह चाइनीज पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीजें अभी हमसे वो जो है वो हमारे सामने नहीं आ सकी, यहाँ नहीं है इस तरह। तो जब ये आएंगी तो बहुत सारी चीजें ये दुनिया को विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। अभी डॉक्टर तारिक साहब ने एक बात की है सर, आप कहें ना जो आपने लिखा है कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, सर इस पे आपकी क्या राय है? देखिए बात ये है सुहेल भाई कि मैं ये समझता हूँ कि जैसा मैंने पहले अर्ज किया ना कि अभी तो हम हजारों साल पुरानी किताबें नहीं पढ़ सके, तो किसी कोई भी चीज को हम मतलब पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि ये क्या है या कैसे है या क्यों है। हर एक चीज की अपनी अहमियत है। अभी हम देख रहे थे, मैं 2012 में देख रहा था। 1912 में तो खैर मैं सिर्फ 80 साल का हूँगा, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये मैंने पढ़ा एक जगह, सोशल मीडिया पे ही देखा, नेट पे सर्च किया कि जी 2018 में सारे न्यूज़पेपर डिजिटल हो जाएंगे, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, और फिर कोई पेपर न्यूज़पेपर पेपर फॉर्म में नहीं मिलेगा। लेकिन देख लें उसी तरह चल भी रहा है साथ, वो भी हो रहा है। तो बात यह है कि किताबों की सदी जो है वो तो कभी नहीं देखें। एक्चुअली रसल ने एक दफा एक पाकिस्तानी साहब थे, उन्होंने बैरिस्ट्री की, तो बैरिस्ट्री करके वो उन्होंने कहा अब यार थोड़ा सा लंदन की सैर करनी चाहिए, मैं आई हैव कंप्लीटेड माय क्वालिफिकेशन। तो वो बस में बैठ गए, तो उनके साथ एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे, किताब खोली हुई है। तो उन्होंने कहा जी, बड़ा वो एक्साइटेड थे, मतलब एक अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके। तो उन्होंने उनको हेलो हाय किया, तो उन्होंने कहा जी अच्छा, बुजुर्ग ने कहा जी आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका हूँ और अब मैं सिर्फ सैर कर रहा हूँ, लंदन को देख रहा हूँ। तो उसने फिर बुजुर्ग को कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं जो है वो अभी अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर रहा हूँ, अभी मेरी क्वालिफिकेशन एजुकेशन कुछ भी मुकम्मल, देखें किताब हाथ में पकड़ी हुई है, ऐनक लगाई हुई है, पढ़ रहा हूँ। तो वो रसल थे, यानी मैंने पहले जैसे बताया जिन्होंने ये कहा। तो एजुकेशन जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी, बुक्स आपके साथ रहेंगी, उनकी फॉर्म्स कुछ भी हो, पेपर बुक्स हो, व्हाटएवर, किताबें आपके साथ रहेंगी। अगर नेट पे कोई चीज चली जाती है या गूगल पे आप 100% डिजिटल हो जाती है, तो क्या पेपर बुक की अहमियत कम हो जाएगी? उसकी रिसर्च जो है क्या वो खत्म हो जाएगी? या 5000 साल पहले की जो टैबलेट आपको मिलेगी उसकी अहमियत कम हो जाएगी? इसी तरह 500 साल बाद 2500 कुछ में अगर आपको ये बुक मिलती है, मेरी लाइब्रेरी कोई निकाल ढूंढता है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट, तो क्या इनकी अहमियत कम होगी? इसमें कई चीजें उसको मिलेंगी पढ़ने के लिए, जिससे उसको अंदाजा होगा कि ये किस तरह की सिविलाइजेशन थी, यहाँ कैसे थे, और लोग ये सैकड़ों घरों में से या हजारों में से एक ही घर मिला है जिसमें कुछ किताबें माजरत के साथ। तो वो बड़ा कुछ अखज करेगा, फिर उन किताबों के अंदर उसके लिए बहुत कुछ होगा। तो किताबों की अहमियत कभी भी खत्म नहीं होगी और ना हो सकती है, और वो हमारे साथ रहेंगी। और जब तक ये दुनिया है, मैं समझता हूँ कि बुक्स जो है वो अपना रोल प्ले करती रहेंगी। क्यों सर भाई? अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पर कमेंट करूं। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपके यकीन कीजिए गुफ्तगू का बहुत मजा आ रहा है, और सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। अच्छा सर, यहाँ पे मुराद किताब नहीं है, यहाँ पे मुराद जो इश्क करने वाले लोग हैं ना, वो कम है। मिसाल के तौर पे पहले जो साहिब किताब होते थे वो उसकी तादाद को 10% होती थी पाकिस्तान में। सर आप यकीन करें वो कम होकर 3% रह गई है। और जो साहिब लाइब्रेरी हैं जो आप बता रहे हैं कि 12,000, ये तो हमें कहीं कहीं से पता चलता है। और ये जितनी आलम फाजिल बादशाहों के ये शौक थे जो ये करते थे, ये बहुत बड़ा कोई आलम फाजिल होता तो उसके घर में लाइब्रेरी जरूर होती थी। लेकिन
अब तो लाइब्रेरी सर है ही नहीं। हमारे दौर में वो आना लाइब्रेरी होती थी, जगह जगह पे लाइब्रेरी को हम पैसे दे के वो किराए पे किताब लाके पढ़ते होते थे। तो इसका मतलब ये कि जो किताबों से इश्क करने वाले हैं सर वो कम हो रहे हैं। तो इस सदी का अदरवाइज इंफॉर्मेशन नॉलेज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो बुक फॉर्म में नहीं है। वो तो हवा में है, डिजिटाइज है और वर्चुअली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो हैं, जो कि एक्चुअली मैं समझता हूँ कि मेंटोर होते हैं, गाइड होते हैं, इस तरह के लोग हमारे पास, इस तरह का जो खजाना है सर वो कम हो रहा है आपके पीछे। और वो जो सारे आपके पीछे, वो आपके जहन में भी है, जिसको हम टैसिट नॉलेज कहते हैं, उस टैसिट नॉलेज वो खत्म होता जा रहा है। बल्कि अब तो एक और आ गया फेक न्यूज़ के हवाले से, और मीडिया जाहिर है इस पे आज के हमारे जो लाइब्रेरी साइंसेस के अंदर इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि फेक न्यूज़ जो है जी। उसको कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आपका यकीन कीजिए मुझे बहुत मज़ा आया, आपके जितने भी थॉट्स थे। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक किताब से है, तो किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग मुझे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। Dr. Sumaira, I would like you to say बहुत शुक्रिया something. If you अस्सलामुअलैकुम दिलावर साहब, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही पूरा सेशन। मेरी तवज्जो नहीं हट सकी। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि पूरा सेशन एक मिनट भी मेरी तवज्जो नहीं हट सकी। इसमें सबसे अहम बात जो मुझे लगी और वो ये थी कि आदमी से जो इंसान का सफर है वो किताब के जरिए है, और आदमी से इंसान बनता ही इंसान किताब से है। तो ये बहुत खूबसूरत बात थी, बहुत इंफॉर्मेटिव। मैं ऐड सिर्फ ये करना चाहूंगी, बहुत अच्छी डिबेट रही। सिर्फ मेरे ख्याल से जो मैं समझती हूँ, किताब का जो कॉन्सेप्ट है और जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो वक्त के साथ इवॉल्व हो रही हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं वो मौजूद हैं, और दिन ब दिन उनकी फॉर्म्स भी बदल रही हैं। लेकिन किताब लिखना, किताब पढ़ना, चाहे वो बुक मतलब वो पेपर की फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, उसकी स्टिल अहमियत अभी बहुत ज्यादा है। और वो बुक लवर्स बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो अप्रोच इस किताब को ना कर सकें जो हमारी पेपर के फॉर्म में है, लेकिन स्टिल वी एंड दे आर लुकिंग फॉर द डिजिटल। आप देखें ई बुक्स जो है वो बहुत बड़ा इवॉल्व और उसकी रीडरशिप बहुत ज्यादा है। हम डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो देख रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा कि वो तो हवा में है, और वो इंफॉर्मेशन भी हवा में है, क्योंकि वो वीलॉग्स देख लें, ब्लॉग्स देख लें, और भी अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट रिसर्च बेस्ड। जो रिसर्च है वो हमें किताबों में नजर आती है, जो विजन है वो किताबों से मिलता है, और जो जिंदगी गुजारने का नजरिया है, जिंदगी को देखने का नजरिया और जिंदगी को परखने का जो नजरिया है वो किताब ही देती है। तो किताब की अहमियत कभी खत्म नहीं होती, और ना ही मुझे लगता है कि कभी होगी। सिर्फ उसके जराए बदलते जाएंगे, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती जाएगी सोसाइटी की, और हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ फॉर्म बदलता जा रहा है, अहमियत बरकरार है। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा इस सेशन का हिस्सा बनकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम एनकरेज सोहेल साहब, अगर लेट मी से 2-3 वर्ड्स ओवर इट। पहली बात ये है कि वो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि किताब दोस्ती की बात हो रही थी, इश्क की। तो वो साहिर ने कहा है कि इश्क एक शख्स का भी मिल जाए तो बहुत है ये जिंदगी के लिए, कुछ इस तरह की उसकी नज्म है। और फैज ने कहा ना कि और निकलेंगे उस शाख के काफिले। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, किताबों के आशिक बहुत हैं, बहुत पैदा होंगे। दूसरा, डॉक्टर सुमैरा की बात सुन के मुझे आई एम एनकरेज, आई थैंक यू। बिल्कुल, देखें फॉर्म बदलती जाएगी बुक्स की, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, जो मैंने कहा कि उसके जो आपकी जो पास्ट फॉर्म है वो भी, उनकी भी अहमियत कम नहीं होगी। कि अभी तक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सिलेंडर्स हैं 5000 साल पहले की जो सील्स हैं उनको नहीं पढ़ सके, वो भी बुक्स है उस वक्त की। उस वक्त पेपर नहीं था, तो इस तरह ये लोग लिख देते थे, एनग्रेव कर देते थे। देखो ना, जैसे केव पेंटिंग है 25,000 साल पहले, वो भी एक बुक है, उसको भी हम मुकम्मल तौर पे अभी तक उन बुक्स को नहीं पढ़ सके। तो अगर फर्ज करें पेपर बुक नहीं होगी, हम किसी और फॉर्म में चले गए होंगे आज से 500 साल पहले, 200 साल बाद, 500 साल बाद, तो फिर भी अगर किसी को मेरी ये लाइब्रेरी मिलेगी तो उसको लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें भी मौजूद होगी। ये नहीं हम कह सकते कि भाई ये रिडंडेंट नहीं होंगी, जो चीजें ये भी चलती रहेंगी, हर फॉर्म
फॉर्म मतलब कोई पॉपुलर फॉर्म आ सकती है, जैसे आप डिजिटल मीडिया, डिजिटल सॉर्ट ऑफ थिंग या इस तरह की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पेपर की बुक की अहमियत कम हो जाएगी, उसमें नॉलेज, वही रिसर्च बेस्ड नॉलेज मौजूद रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। सिरम नवाज लेक्चरर है हमारी मीडिया स्टडीज की। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छी बातें की हैं इस हवाले से, बुक्स के हवाले से। बच्चों को इस टाइप के सेमिनार्स, इस टाइप के डिस्कशन में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी स्टूडेंट्स ने ये क्राइटेरिया कर लिया है कि जब नॉलेज लेना है तो वो कहते हैं सोशल मीडिया पे हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, बुक्स पे वो उस तरह से डिपेंडेंट ही नहीं है अभी स्टूडेंट्स। उनको लगता है कि तमाम तरह का नॉलेज जो है वो हमें सोशल मीडिया से मिल जाता है। ऑब्वियसली इसने बिल्कुल सही बात की है कि सोशल मीडिया पे हमारे पास नॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन वो कोई रिलायबल सोर्स नहीं है हमारे पास। वहाँ पे एक हम किसी चीज को सर्च करने के लिए करते हैं तो उससे रेलिवेंट कोई 10 चीजें खुल जाती हैं जो कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से बहुत ज्यादा फेक इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट चीजें जो है वो हमारी सोसाइटी में जो है वो स्टूडेंट्स उसको देख रहे हैं। तो बुक्स के साथ जो एक ताल्लुक है वो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में भी। इवन आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आते हैं तो भी हर बुक हमें कुछ ना कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़रूर सिखाती है अगर हम उससे सीखना चाहें। तो हम जिंदगी में कभी भी किताबों से मोहब्बत किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते हैं। जिंदगी में हर पॉइंट पे कामयाबी के लिए हमें किताबों पे डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेमिनार अटेंड करके, और वाकई सर की तरह मैं भी यही कहूँगी कि ये इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी कि मैं 1 मिनट को भी साइड पे नहीं हो सकी। वो तमाम डिस्कशन को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। मुबारकबाद स्टूडेंट्स को, इतना अच्छा सेमिनार किया, इतने अच्छे उस्ताद आए हैं, इतने खूबसूरत मेहमान इंटेलेक्चुअल और बच्चे दूसरे सेशन से भी मैं हारिस को देख रहा हूँ, और इस तरह बहुत सारे बच्चे, कोमल है, सीनियर्स। सो सर बड़ा माशाल्लाह कामयाब हमारा सेमिनार रहा। और आप इरम को रिस्पॉन्ड करें सर। बिल्कुल, इरम ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि जो उसमें उनका एक सेंटेंस है कि हम एक कामयाब जिंदगी गुजार नहीं सकते बुक्स के बगैर, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कामयाब जिंदगी महज पैसों का हसूल नहीं है, या आप मटेरियल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको गेन करना नहीं है। और यही चीज आपको बुक्स देखें, आपकी जिंदगी में जिस तरह जागना जरूरी है उसी तरह सोना भी जरूरी है। जिस तरह और चीजें, सांस लेना जरूरी है, ठीक है ना, जो बहुत सारी हम समझते नहीं है, या अगर चलना जरूरी है तो कहीं रुकना भी जरूरी है। इसी तरह लाइफ में बैलेंस, कामयाबी ये है कि आप लाइफ का, जिंदगी का वो बैलेंस हासिल कर लें किसी तरह, और वो आपको बुक्स और दूसरों के तजर्बात, बुक्स के जरिए मिलेगा। बड़े बड़े बादशाहों ने बुक्स लिखी, वो मेडिटेशन में पढ़ रहा था, बड़ी स्पिरिचुअल, जो रोमन एम्परर ने लिखी, तो उसमें देखें तो वो यूं लगता है जैसे वो बताना चाह रहे हैं इतने बड़े सुपर पावर, उस वक्त की सुपर पावर के एम्परर, और वो बता रहे हैं कि वो एम्प्टी हैंडेड हैं बहुत सारे मामलात में, वो जो स्पिरिचुअली, व्हेन ही स्पीक स्पिरिचुअली। तो हमें लाइफ को, कामयाब लाइफ यही है कि हम उसमें एक बैलेंस लेके आना है, और वो बैलेंस जो है वही अच्छी किताबें जो है आप में क्रिएट करती हैं। आप एक अच्छी जिंदगी गुजार जाएं। देखे ना, अगर आप एक बहुत कामयाब जर्नलिस्ट हैं, अगर आप एक अच्छे बेटे नहीं, तो अपनी माँ बाप के नजदीक तो आप बहुत बुरे शख्स होंगे। कामयाब जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एक अच्छे नेबर नहीं है अपने नेबर्स के तो ये बैलेंस जो लाइफ में है, ये अच्छी बुक्स जो है ये क्रिएट करती हैं कि आपको एक बैलेंस्ड लाइफ, और आप उसका इतना मजा लेते हैं उस बैलेंस्ड लाइफ का, कि मैं समझता हूँ कि जो आपको शायद कुछ मटेरियल गेन्स से ना मिल सके, मैं मटेरियल गेन्स के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ को भी तो एंजॉय करना है। हमारे एक न्यूज एडिटर थे, तो उन्हें मैंने ये कहा कि, मैंने कहा कि आप बड़े अच्छे फादर साबित हुए, हस्बैंड भी साबित हुए, बेटे भी आप बहुत अच्छे थे, लेकिन आप अच्छे शख्स अपने लिए, मतलब उनका नाम मैं नहीं ले रहा, कि फर्ज करें उनका नाम अहमद रख लेते हैं फर्जी, तो आप एक अच्छे अहमद साबित नहीं हुए। आपने कभी अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे, मतलब लाइफ, आपकी भी तो लाइफ है ना, लाइफ यही तो नहीं है। तो इसी तरह
दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें ही कामयाबी है। और ये कामयाबी आपको अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छी बुक्स के दरमियान रह के मिलती है। सर अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं, आप सोचते होंगे कि हम बुक्स क्या कर रहे हैं, आपको इतनी बुक्स पढ़ने का कह रहे हैं। आप बीएस कर रहे हैं, अपनी एकेडमिक्स बुक्स पढ़ रहे हैं, आप 40 कोर्सेज पढ़ेंगे, 40 किताबें कोर्सेज पढ़ेंगे। जिस तरह नमाज फर्ज है, फ़राइज़ हैं, सुन्नतें हैं और फिर नवाफिल हैं। नवाफिल वो एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको अल्लाह के करीब करता है, जो अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करना चाहता है। उसके बारे में कहा गया है कि नवाफिल अदा करे तो मेरी कुर्बत मिलेगी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो फ़र्ज भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है। इसी तरह एक्स्ट्रा रीडिंग्स जो होती हैं, स्टूडेंट्स वो एक्सेल करते हैं जो एक्स्ट्रा रीडिंग्स करते हैं, जो निसाब से हट के एक अपना सिलसिला रखते हैं, एक्स्ट्रा रीड करते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो आउटस्टैंड करते हैं। उनके अंदर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा रीडिंग्स करते हैं, एक्स्ट्रा लिटरेचर को कंसल्ट करते हैं। वो आम स्टूडेंट से थोड़ा सा सतही से ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमारी सारी कोशिश, आज का इतना अच्छा सेशन और ये सारी कोशिश, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप इस चीज़ की अहमियत को समझें कि अगर आपको क्लास में टीचर ने 2 घंटे का लेक्चर पढ़ा दिया है, उसने आपको 2 घंटे के मुनासबत से पढ़ा दिया एक टॉपिक। अब उस टॉपिक को आपने एक्स्ट्रा रीड करना है। मेरे पास 4000 ई बुक्स हैं जो लाइब्रेरी में पड़ी हैं, और डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर तारिक साहब हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं, एक पूरी ह्यूज लाइब्रेरी पड़ी है जिसमें हर शोबे की किताबें हैं। तो आपके तो डोर स्टेप पे ये सारी चीज़ें हैं और आपको एक्सेस भी है, वर्चुअल एक्सेस आप कर सकते हैं। सो इस सेशन को करने का मकसद सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना था। अगर आप जिंदगी में थोड़ा सा ओवर टाइम करेंगे ना, तो फिर उस ओवर टाइम का फायदा आपको मिलेगा, आपको नजर आएगा अपनी जिंदगी में। जो लोग भी ओवर टाइम करते हैं, चाहे वो अल्लाह के लिए करें या दुनिया के लिए करें, उन्हें उसका सिला मिलता है। Namira, over to you now. Move to question answer session and then we will conclude. Sure, sir. Thank you so much, everyone, for such a treasure of words and this amazingly informative session. Now, I would request my colleague Alina to please take over for the question and answer session. Thank you, Namira. Before coming to the questions, I would express my gratitude towards Sir Dilawar for explaining the topic so well and letting us have deep insight towards books and being the tool of mass communication. Now, starting with the questions, for the first question, I would request Mohammad Faraz to please come forward. Thank you, Alina. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mohammad Faraz. सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें आज अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया, और सर सुहेल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे गेस्ट स्पीकर के साथ आज का हमारा ये सेशन करवाया, और सब टीचर्स और सीनियर्स का शुक्रिया। और सर, my question is that what is the significance of biographies? फराज, बायोग्राफीज की बहुत सिग्निफिकेंस है, स्पेशली व्हेन यू आर ए जर्नलिस्ट। तो आपको पास्ट प्रेजेंट की पर्सनैलिटीज के साथ ही तो आपको वास्ता पड़ता है। तो अगर आप उनके बारे में जानते, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि अगर हफीज जलंधरी जो नेशनल एंथम के खालिक थे, अगर मुतल्लिका इंचार्ज ने उनको पढ़ा होता और उनसे वो फेमिलियर होता, तो वो किसी और की जो है वो तस्वीर जो है उनकी जगह पे ना लगाता, बल्कि वो खुद ही इसको करेक्ट कर लेता। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट भी बायोग्राफीज की बड़ी अहमियत है। और इसके अलावा भी एवरी मतलब फील्ड में, कि मैं समझता हूँ कि आप ये एक्सपीरियंसेस हैं दूसरों के जो मुफ्त मिल रहे हैं हमें। एक 60-70 साल की एवरेज जिंदगी में हम इतने एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकते। तो अगर हमें लेनिन का, स्टालिन का और दूसरे लोगों का, मेरे ज़हन में इसलिए लेनिन स्टालिन इसलिए आगे कि मैंने रिसेंटली अभी इनकी बायोग्राफीज मंगवाई हैं, 2 दिन हुए। तो बाकी और भी जो है, अगर हम उनकी बायोग्राफीज से, कायदे आज़म की, हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मिल जाएंगी।
और हम उनके एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाएं, और फिर इसको जर्नलिज्म में भी जहां हमें जरूरत पड़े कि भाई कायद आजम ने फलां मौके पे ये किया था, हमें लिखने में भी बहुत मदद मिल सकती है कि हमें बहुत सारे आइडियाज उनकी मिल सकते हैं। तो बायोग्राफीज की बड़ी अहमियत है, वेरी सिग्निफिकेंट। थैंक यू सर। The next question is by Zeba Masood. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, everyone. Sir, I am very glad to attend this session because it is very informational and motivational. Sir, after this, my question is that what strategies a writer as a beginner should adopt for making his career a successful one? बिगनर के लिए बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि मोहतात होना चाहिए लिखने में, और इंफॉर्मेशन जो वो आगे पास ऑन कर रहा है और जो वो गैदर कर रहा है उसमें भी, क्योंकि उसने अभी अपना नाम बनाना है। बड़ा आदमी है जिसने बहुत सारे काम कर लिए हैं, बहुत सारे स्कूप्स कर लिए हैं, बहुत सारे न्यूज ब्रेक्स कर लिए हैं, या बहुत सारे अपना नाम पैदा कर लिए, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसमें इतना उसको वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा ये सारा, जितना कि उसके लिए होगा कि जो बिगनर ही है, अगर बिगनिंग में ही उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएं तो वो फिर उसको बड़ा मुश्किल होगा। तो उसको बड़ा उसको ना इसके लिए बड़ा चूजी होना चाहिए इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी, और ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत एक एक चीज को छानना, जांचना, परखना चाहिए। और इसके लिए भी वही वाली बात कि अगर वो equipped with the बुकिश नॉलेज होगा, ऑथेंटिक नॉलेज होगा, तो वो ज्यादा आसानी से इसे कर लेगा, मैं ये समझता हूँ जी। Thank you, sir. Welcome. Now Hamna will come forward with another question. Assalamu alaikum, sir, and assalamu alaikum, everyone. Sir, my question is, which personality inspired you in Pakistan? It's a difficult question. Many personalities inspired me. अगर आप लिखने लिखाने के हिसाब से बात करें तो एक बहुत ही अच्छे अहमद हसन दानी साहब ने, बड़े अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट। फिर इसके अलावा के अजीज ने बहुत अच्छा लिखा है, और इसके अलावा एक बहुत ही जो इतने फेमस नहीं है, इब्ने हनीफ, जिन्होंने 30 इयर्स रिसर्च के बाद एंशिएंट इजिप्शियन लिटरेचर पे जो 4 वॉल्यूम बुक्स लिखी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ही मुल्क में वो बुक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है अब कहीं भी, वो प्रिंटेड फॉर्म में, या मतलब प्रिंटेड फॉर्म में तो कहीं ना कहीं होंगी, लेकिन हमारे पास हम वी कांट बाय देम, वी कांट परचेज देम, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इवन मुझे भी कहीं से उनकी एक पता चला कि वो जनूबी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी में पढ़ी है, तो वहां से मैंने उनकी फोटो कॉपी ली हुई। तो इन लोगों ने बड़ा इंस्पायर किया जी। Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Now for one more question, I would call Hamad Zafar. Thank you so much, Alina. Assalamu alaikum, everyone. My name is Hamad Zafar. It is so wonderful being part of this amazing seminar. Thank you, Sir Dilawar, for sharing these wonderful things with us, and thank you for telling us the significance and importance of books. I've been meaning to ask this one question from you, sir. Are there some propaganda books? And if there are, how can we identify them? Yes, many. बहुत सारी प्रोपेगेंडा बुक्स हैं जो सर्कुलेट, जो अपने अपने मकासद के लिए लिखी जाती हैं। उसके लिए भी जैसे ये कहा जाता है ना कि मतलब लैक ऑफ डेमोक्रेसी का क्या सलूशन है, तो कहते हैं पुट मोर डेमोक्रेसी। इसी तरह प्रोपेगेंडा बुक्स का भी यही है कि आप अपने आप को इक्विप करें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के साथ, बुक्स के साथ, एंड अ टाइम विल कम यू विल आइडेंटिफाई द प्रोपेगेंडा। आपके पास अपना इतना नॉलेज होगा कि जब आपके सामने कोई ऐसी बुक आएगी आप कहेंगे नहीं, इट्स मेयर प्रोपेगेंडा, इट्स नॉट ऑथेंटिक राइट अप, तो आप खुद ही उसको शनाख्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी चीज का कम इल्म होगा तो आप किसी भी प्रोपेगेंडा, जैसे कि मैंने शुरू में भी लेक्चर के कहा था कि वो आप अपने प्रोसेस करते हुए अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को किसी भी प्रोपेगेंडा का, किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन का, डिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो सकते हैं। मैं ये थोड़ी सी इजाजत लेके सर सोहेल से, उनकी बात बिल्कुल बहुत बड़ी होती है कि ये जैसे नवाफिल होते हैं ना, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूं कि जो आप अपने कोर्स से हटके बुक्स पढ़ते हैं वो फराइज हैं,
और ये जो आप कोर्स की बुक्स पढ़े ये नवाफिल है मेरे नजदीक, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो फ्रेश मास्टर्स किया होता है अपने मैथ्स कॉम में और इस तरह, लेकिन वो उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रैक्टिकली, जिस तरह के उनको मतलब हम एडजस्ट नहीं कर पाते जिस तरह के होना। लेकिन जिन्होंने अगर बुक्स पढ़ी होती हैं, जिनके पास इससे हटके जो बुकिश नॉलेज होता है, वो ज्यादा कामयाब है। इसमें भी आगे जर्नलिज्म में भी और शुरू में भी हमें वो ज्यादा अपील करते हैं, वो ज्यादा उनका एक मतलब एक चीजों को परखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि किताबें इसलिए बहुत जरूरी है। जी Thank you, Thank sir. you so The much, sir. next question is by Kainat Abid. Assalamualaikum, sir. My question is that what are the best interviews of your life? There are many, some on the record, some off the records. When I talked to Benazir Bhutto, that was the best talk, I think, in of my life. और एक जो इंटरव्यू किया वो एक वजीर दाखिला थे, जो कि दैट वाज द वर्स्ट इंटरव्यू, क्योंकि वो इतने के ज्यादा वो थे अपने आप में गुम के वो इंफॉर्मेशन को बात ही नहीं करना चाह रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लेता, तो वो मेरे लिए, मैंने कहा बेस्ट के साथ साथ वर्स्ट भी बता दो। जी Thank you, sir. The last question is by Laiba हेलो Ahmed. जी जी I can read it. Where do you see your yes hello. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum. First of all, sir, thank you very much for taking out time and sharing your knowledge with us. We are really, really thankful to you for this. And my question is, where do you see our print media standing in the upcoming future? Laiba, as we were talking about the paper form of books, same is the case with the print media, but it will you can't say that it will die out. It will have, मतलब इसमें कुछ थोड़ा सा रोलर कोस्टर है, सारा कुछ है, वो बात नहीं है। जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हम सोशल मीडिया के तूफान की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उसमें डिजिटलाइज होगा। लेकिन प्रिंट मीडिया अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे पॉपुलर चैनल मेरे नजदीक CNN, BBC, और इसी तरह दुनिया के सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर्स अभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट है। वजह ये है कि एक्सक्लूसिव, अगर आपका एक्सक्लूसिव क्लस्टर जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, आप ऐसी कुछ चीज देते हैं कि लोगों को पता है कि ये जंग में ही आ सकती है, नवाए वक्त में ही आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूयॉर्क टाइम्स में ही आ सकती है, तो वो आपको पढ़ेंगे, वो देखेंगे, और फिर ओपिनियन के लिए जो है वो कॉलम्स और एडिटोरियल्स जो है वो रहेगी। डिजिटलाइज हो सकता है सारा, किस फॉर्म चेंज हो सकता है, बट इट विल बी देयर। प्रिंट मीडिया मतलब बिल्कुल वाइप आउट या डाई आउट नहीं होगा। Thank you very much, sir. Thank you, Thank everyone. you. With this, we come to the end of- जी अलीना, Thank you, everyone. With this, we come to the end of question answer session. Now, I would again You did request well. Samira to take over. You did well, Alina. Happy Thank to you, sir. Wonderful, beta. Thank you so much. Thank you, Lina, and thank you everyone. Can I say a sentence? मैं समझता हूँ कि सर सुहेल जैसे असातिज़ा आपको अगर मैसर हैं तो इनसे खूब फायदा उठाएं। देखिए ये इनोवेशन है, डिफरेंट आइडियाज लेके आते हैं और फिर आप तक इनको के बुक्स एज ए टूल ऑफ, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की कोई डिस्कशन जो है वो कभी चली हो। तो आई माई सैल्यूट एंड ट्रिब्यूट टू सुहेल साहब। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Alina, and every team member for making it happen. And most importantly, Sir Dilawar, for letting us students have a deeper insight into the world of books. Now, I would request Ms. Aisha to kindly present her concluding remarks regarding today's webinar. Ma'am, over to you, please.
Thank you so much. Miss Aisha Mirza is permanent faculty member. She is assistant professor. She is a very competent and dedicated professional, and I'm really proud to have her in my team. So now over to you, Aisha. Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. It's always you who guide us and make us worthy of anything. First of all, I would like to congratulate all of you who have conducted such an amazing session. It was really worth listening and thought-provoking. I got an idea about so many things, how I'm going to engage my social media wing into the reading. और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा मैं thank you करना चाहूँगी मिस्टर दिलावर का, जिन्होंने टाइम निकाला, यू टुक आउट टाइम फॉर अस, और हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो आपने शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस, और बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी बातें बताएं जो कि आउट ऑफ द बुक्स एंड आउट ऑफ आवर कोर्स सिलेबस थी, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड होती हैं, लेकिन हम लोगों का फोकस जो है वो सारा कोर्स कंटेंट पे ज़्यादा होता है, और ये चीज़ें जो हैं वो उनकी कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं. तो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू से थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आपने जो है इन चीज़ों पे जो है वो हाईलाइट किया, इन इश्यूज़ को, इन चीज़ों को, और सर सुहेल ने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया. उसके बाद नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर समीरा बतूल, जो कि हमारे साथ थी. she is my teacher and really love her, I respect her. डॉक्टर तारिक साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, मिस इरम नवाज, के आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे इस सेशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, और इसको जो है वो और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारी हेल्प की. उसके बाद जो है एक चीज़ जो है मैं थोड़ा सा डॉक्टर समीरा ने जो बात की थी उस चीज़ पे जो है मैं, क्योंकि आई एम हेडिंग सोशल मीडिया विंग हेयर इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट, कि मैं भी इस चीज़ को ही सेकंड करना चाहूँगी कि बुक रीडिंग ख़त्म नहीं हो रही, ई बुक्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है. और जिस तरह से कहते हैं कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, तो यही सेम बात है कि जैसी ऑडियंस होती है, मीडिया भी वैसे ही शिफ्ट होता जाता है, वैसे ही इवॉल्व होता जाता है. तो सबसे पहले ज़रूरत ये है कि हम अपने यूथ को, अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें. जब वो डिमांड ही एजुकेटेड चीज़ों की करेंगे, जब उनके पास इतना ज़्यादा सेंस होगी कि वो गुड एंड बैड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली पीपल विल बी फोर्स टू क्रिएट गुड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एज वेल. तो बेसिक हमें ये जो है, हम अगर अपनी यूथ को, अपने आप को इस चीज़ पे जो है हम अगर थोड़ा सा वर्कआउट करें, और हम जब डिमांड करेंगे, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया भी एक मीडियम है बाकी मीडियम्स की तरह, तो लोगों को जो है वो फोर्सफुली उस चीज़ की तरफ आना पड़ेगा कि वो जो है वो रीडिंग करें, पहले रिसर्च करें, देन दे अपलोड एनीथिंग. कोई भी काम करना है, वीलॉग बनाना है, हम लोग बेसिकली अभी जो है सिर्फ लाइक के बटन को लाइक समझते हैं, हमें ये नहीं पता कि रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है. लेकिन आई होप, आई एम पॉजिटिव कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू मीडियम. अब बहुत से एजुकेटेड लोग भी इस मीडियम पे हैं, एंड नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. डिफरेंट पोइट्स हैं जो कि अपने ऑफिशियल ब्लॉग्स बना रहे हैं, और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जो है वो स्टार और ब्लू बटन भी इंट्रोड्यूस इसीलिए कराए हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके अबाउट बिटवीन द लिटरेट पर्सन और कोई रैंडम बंदा अगर अकाउंट बना रहा है. तो थैंक यू सो वेरी मच. आई वुड लाइक टू से थैंक यू वंस अगेन, और ये बहुत मजे की डिस्कशन थी. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू दिलावर साहब. विद दीस बहुत बहुत शुक्रिया सब साथियों का, बहुत शुक्रिया. दिल नहीं करता कि ये सेशन खत्म हो, लेकिन आखिरकार हर मुलाकात को बर्खास्त होना ही है. सो फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी और टॉपिक में मिलेंगे. आपका बहुत शुक्रिया, और हालात अच्छे होते हैं तो हम आपके न्यूज़पेपर को विजिट करेंगे, जो हमारी बड़ी स्टाउंच विश है बड़े लॉन्ग टाइम से. मोस्ट वेलकम सुहेल साहब, और मैं चाहूंगा कि आप लाइब्रेरी को भी बच्चे और आप विजिट करें. इंशाल्लाह. मोस्ट वेलकम. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.